ایسا لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ہمیں تکلیفات ہوتی ہیں، مگر اب کریں کیا، اس کے سوا ہمارے پاس اور کچھ ہے نہیں۔ بس بھیڑ بکری کا کام کاریا ہے، کھانے بدوشی میں ہم نے عمر گزار دی ہے، اور کچھ سہارا نہیں ہے، اللہ کا سہارا ہے۔ اب تو جو بھی دیکھنا چاہیے ہے جب گرمال کا پیدیشن کیسا ہے اور اس کا گھر میں کیا ہے اور وہ کیسا زندگی گزارا ہے۔ ہمارا جب سے ہمارے بچپن سے مطلب میرے ماں باپ دادی دادا ہماری پشت اسی میں گزر گئی، ہمارا کاروبار یہی ہے، اور اب تھوڑا سا یہ مشکل ہو گیا کرنا، کیونکہ ہمارے ہاں جانے آنے کا تھوڑا راستے میں پرابلم ہوتی، پہلے جگہیں کھلی ہوتی تھی، اب ہر جگہ مطلب کہ مکان باغ باغیچے بن گئے، ہمیں سڑک میں چلنے میں دقت، ٹریفک سب سے زیادہ ٹریفک کا معاملہ ہے، دن بھر ہم چل نہیں سکتے، رات پہ ہم چلتے ہیں اور ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم مطلب کہ تھوڑا سا مایوس ہے۔ اس میں پریشانی ہوتی ہے، جیسے ہم رات کو باہر رہتے ہیں، جنگل میں رہتے ہیں، اور رات ہمیں ہاپت کا خطرہ رہتا ہے، ٹائیگر کا رہتا ہے، جس میں لومڑی فاکس وغیرہ ہوتے ہیں، یہ مال پہ اٹیک کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، کہیں چور بھی ہوتے ہیں جو مطلب چوری کر کے لے جاتے ہیں، تو کہیں مر جاتی ہیں بارش میں، جیسے ہم یہاں پہ ہمارے پاس ٹینٹ نہیں ہے، اس ٹائم کچھ نہیں ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ہمیں تکلیفات ہوتی ہیں، مگر اب کریں کیا، اس کے سوا ہمارے پاس اور کچھ ہے نہیں، ہمارا گزارا اسی پہ چلتا ہے، ہم اسی کے مطلب اسی کے ساتھ اس میں کچھ بیچتے ہیں، ان سے ان کا خرچہ کرتے ہیں، اپنا خرچہ کرتے ہیں، یہی۔ اب بات اس طریقہ کا ہے جو ہم کو وہ بیک لکھا ہوا تھا، مال کا بیک لکھا ہوا تھا، وہ سمجھو زمین نہیں تھا بسنے کا، بیک لکھا ہوا تھا، جب خود گر گیا تو کسی کا مال کہاں رکھ سکتے۔ پیدل راستہ تھوڑا سا راستہ ہے، وہ جنگلات ہے، اس میں روڈ ووڈ نہیں ہے، بالکل چھوٹا سا راستہ ہے، بہت مشکل چیز ہوتا ہے، اگر کوئی بیمار ہو جائے گا اس کو چرپائی وہ نیچے نہیں لا سکتا ہے، اس وجہ سے میں نے یہیں کا تفلیق برداشت کیا، یہیں بیٹھ گیا، اب ہو گیا 3 سال میرے کو یہاں پرمیننٹ، سمجھو سرما میں بھی جائیں گرمی میں بھی جائیں۔ اب تو سر کیا کر سکتا ہوں، اب کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اب تو میرا خیال یہ ہے جی یہیں بیٹھے گا۔ ایز اے میں ایک کشمیری ہوں، آپ نے بھی کہا آپ ہم سے چائے نہیں پی گئے، کیا آپ کا ایک تعصب ہے کہ کشمیری جو کہیں پر بھی جو بکر نے آپ سے وہ تعصب رکھتے ہیں؟ ہاں ہاں بالکل، زیادہ دیکھو ہمیں اس ٹائم یہ کپڑے ہیں، ہمیں 10 دن سے ہم نے کپڑے دھوئے نہیں ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے، جب آپ آؤ گے کوئی گاڑی والا آئے گا ہمیں بدبو آئے گی، یہ ہمارا مال ہے، جیسے یہ بھیڑ اور بکری ہے، اس کا پیشاب ہمارے پاس ساتھ لگتا ہے، ہم چلتے رہتے، 2 دن سے ہمیں پانی نہیں ملتا، منہ نہیں دھو پاتے کہیں، مطلب کہ نا اس سے تو ہوتا ہی ہے، یہ تو سیدھی سی بات ہے، اسے ہر کوئی کرتا ہے، ہم نے ہاتھ میں ایک ڈاگ ہوتا ہے پکڑا ہوا، اس سے بھی اگر کوئی دیکھے گا بولے یہ کتنا گندا ہے، اس کا ہاتھ کتنا ہے مطلب کہ گندے ہیں، اس لیے ہینڈ شیک کوئی نہیں کرتا ہم سے۔ میڈیسن سسٹم ہاں، جو میں جڑی بوٹی کی بات کرتا ہوں، تو اب تک اس کیا وہ آپ کا کلچر میں یونیک ہے کہ اب وہ ختم ہو گیا ہے؟ ابھی ہے ہمارے، جب ہم اوپر جاتے ہیں ہمارے پاس ہے، مگر لوگ یوز کم کرتے ہیں، اب لوگوں کو بھی سمجھ آ گیا ڈاکٹر ہونا چاہیے، میڈیسن ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، اب جب اوپر جاتے ہیں ہمیں وہاں پہ ہم کرتے ہیں اپنا جڑی بوٹی پرانا بزرگوں والا علاج کرتے ہیں، مگر وہ کم، ہم لوگوں کو بھی اتنی نالج نہیں ہے، مگر جو پرانے بزرگ تھے ہمارے وہ کرتے تھے۔ آج کوئی روزگار نہیں ہے سر، ہم دن کو بچے چلتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کسی دن کو ملتی ہے کسی دن کو نہیں ملتی ہے، کیونکہ آج تو سب ذمہ دار جو ہے اس سال میں سب تھوڑا سا نرم پڑ گیا ہے، کسی ٹیم کو ملتی ہے کسی ٹیم کو نہیں ملتی ہے، بس انتا ہے آپ نے تو کھانا بس وہ تھوڑا سے جو رات کو گزارا ہے یا صبح کا ہے وہی نکالتے ہیں، اور کیا کرنا، بس اتنی ہوتا ہے اور زیادہ نہیں ہو سکتے۔ یہ جڑی بوٹیوں کا جو آپ کا اپنا سسٹم تھا، یہ ہاسپٹلوں سے اور باقی چیزیں کیسے مختلف تھا؟ یہ مختلف تھا ہاسپٹلوں سے، آج بھی جو میڈیسن بنتی ہے ہاسپٹل میں جہاں ہم لوگ سائنس کی طرف سے یوز کرتے ہیں وہ وہیں سے آتی ہے، جڑی بوٹی کی بنتی ہے وہ،
बट अब उसका तरीका है जो वो हम पहले लेबोरेटरी में ले जाते हैं, वो टेस्ट होती हैं, उनको पीसते हैं, कूटते हैं, उनसे बनाते हैं। तो पहले के ज़माने में ये ऐसे थे, दाई थी, जैसे आज ऑपरेशन हो गया, सर्जरी करते हैं तो डिलीवरी अगर किसी की हो, कोई बोलता है मतलब पहले ज़माने में क्या होती थी, नॉर्मल डिलीवरी होती थी। अब क्या करते हैं, पहले ले जाते हैं 5 दिन हफ्ता पहले, तो ये पहले होते थे पहले ज़माने के। अब वो लोग नहीं रहे, वो बुज़ुर्ग नहीं रहे, वो चले गए। अब ज़्यादा लोग यही अस्पताल का रुख ही करते हैं। बट जड़ी बूटी मेडिसन अभी भी है, मगर गवर्नमेंट ने उस पर पाबंद लगा के रखा है। जिसके पास लाइसेंस है कोई निकाल सकता है, बेच सकता है, आम लोग उसको बेच सकता नहीं। सोसाइटी इस चीज़ को आप जो आपका अपना सिस्टम था, मेडिसिन सिस्टम, सोसाइटी इसको मानती है? जो लार्ज कश्मीर सोसाइटी है या जम्मू सोसाइटी है, कि इनके बुकरों के पास एक अपने अलग मयार है हेल्थ सिस्टम का? गवर्नमेंट मानती है इसको, बट कागजों में मानती है। गवर्नमेंट कहती है हम ये करेंगे, हम वो हेल्प करेंगे, आपके माल का इंश्योरेंस देंगे, आपको गाड़ियाँ प्रोवाइड करेंगे, आपको वहाँ से वहाँ तक। मगर कहने का और करने का बहुत दोनों तरीके होते हैं। कहने का हो गया, आपने कह दिया तो हो गया कागजों में, मगर करता कोई नहीं है। इसमें हेल्प होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे हम अभी यहाँ से, हमें दिन में वो अलाउ ही नहीं है करना, मतलब सड़क पे चलने का अलाउ ही नहीं है दिन में। पहले जड़ी बूटी का काम या थोड़ा बहुत माल या किसी के साथ होता था, या बैक में कुछ चलता था, उस वक्त अगर सिर को दर्द पड़ता था, टिट चाय का आधा कोड़ा चाय का आधा कप पीता था तो आराम आ जाता था। अब जिस वक्त से यो खाद जिस वक्त से जो खाद पैदा हो रही है, यूरिया जिस वक्त से पैदा हो रहा है, उस वक्त वो जड़ी बूटी कुछ इस्तेमाल नहीं हो सकती है। जो जड़ी बूटी से जो खाद है यो ज़्यादा सख्त है, जो असर नहीं कर रही है जड़ी बूटी को। जड़ी बूटी को कुछ असर नहीं आता है इससे, जो तेज़ है ज़्यादा। अब अगर कोई नई में भी बीमार हो जाएगा, कोई खानू लोक में बकरवाल में कोई बकरी वाला होगा, वो भी सीधा अस्पताल में आएगा, उनको भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जड़ी बूटी से। हम इसको अच्छी तरह पहले अच्छे से देखते थे। अब इसमें बहुत डिफिकल्टियाँ आती हैं, बहुत मुश्किलात आती हैं। वो किस वजह से कि हमारे पास अब रहने को जगह नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम है जंगल की, और आम जो आजकल का ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक में तो ना हम चल सकते हैं और ना ही जंगल में, मतलब कि इसका। और सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है, हम ये जो अपना माल पालते हैं, इसमें हमें इसका जो गोश्त बाद में फरोख्त करते हैं उसमें बहुत कम है, उसका रेट बहुत कम है। तो इसकी वजह से हमें इसका रेट नहीं है। अगर हमारा सिस्टम चल रहे हैं, चलते चलते हमें नाक कोई मर जाएगा, उस पर कोई इंश्योरेंस नहीं है, इस पर खर्चा बहुत है, आमदनी कम है। किस पे? इस पे आमदनी कम है। अभी 600 का जो हमारा ये गोश्त है, मीट, वो बिक रहा है, और गवर्नमेंट बोलती है उसको भी आप 535 में कर दीजिए। मगर गवर्नमेंट को ये नहीं मालूम कि इसको पालने के लिए, इसको हमें बढ़ावा देने के लिए पैसे कितने खर्च होते हैं। इस पे एक चीज़ पे नहीं है, इस पे बहुत सी चीज़ों पे पैसा खर्च होता है। जैसे इसकी मेडिसिन आती है, इसके साथ एक आदमी होता है जो वो लेता है। मैक्सिमम अगर हम मजदूरी पे भी जाएंगे 700 रुपये दिन का लेते हैं, और जो इसके साथ आता है वो 1000 रुपया दिन का मांगता है, क्योंकि ये डे एंड नाइट का है। ये एक ऑनली डे फॉर और नाइट को, इनमें दोनों दिन और रात एक करनी पड़ती है। दिन को चलना है और रात को खड़ा रहना है, क्योंकि इसको हमने कुत्ते से बचाना है, शेर से बचाना है, लोमड़ी से, फॉक्स, जो भी चीज़ें इसके पीछे होती हैं, माल के पीछे अपनी जान का भी खर्चा है। इस वजह से इसका बढ़ावा देना चाहते हैं, मगर इसका बढ़ावा देने की जब गवर्नमेंट हमारा साथ देगी, हमारे गोश्त का थोड़ा सा जो मैक्सिमम रेट है वो बढ़ना चाहिए। देखो सर, एक बात है, मैं आपको एक ही बात बताऊंगा। आप बताओ, देखो सबसे मिनिस्टर का मकान है, जज का मकान है, बनाया किसने? वो बनाया किसने? वो इंजीनियर ने बनाया, जो मजदूर है, इंजीनियर ने बनाया वो। अब मेरे को ये बात बताओ आप, ठीक है, अगर उसका मकान देखेगा तो बोलेगा जो वजीर आला का है, यो होगा मिनिस्टर बड़ा का, जो भी होएगा मुलाजम, यो जज का है, मगर बनाया तो वो मजदूर ने है। मजदूर क्यों नहीं है किसी कैटेगरी में? मजदूर क्यों नहीं किसी रिकॉर्ड में चढ़ाया? अब तक चढ़ाया किसी ने? अगर मजदूर को चढ़ाएगा तो उसको मकान मुलाजम किसी का नहीं बनेगा। अब तक ऐसे ही रहेगा जिंदगी भर जैसे हमें। अब मेरे को बात बताओ एक, ठीक है, अगर हम उसी पोजीशन में रखा है, खाना बदोश पोजीशन में, फिर हमारा अगर माल नहीं है,
गवर्नमेंट को पता है जी, देखो जिस वक्त इनके पास माल था, सब लोगों के पास माल था, हमको इनमें टैक्स तो खुद लगाता था, टैक्स तो हम इनसे लेता था। अब इन्हीं का टैक्स लग रहा है तो हमारा जो बाहर लोगों को पैसा चल रहा है, मजदूर का टैक्स लग रहा है तो लोगों को पैसा चल रहा है। अब बात इस तरीका का है, गवर्नमेंट को पता है जी जो हमारा शरीफ कौम है, इनके लिए हम सोचे अब क्या करें, आगे कैसे बढ़े। कैसे ऐसे उनको अभी क्या कर सकते हैं इनके साथ। इतने पढ़े लिखे नहीं है कि हम दूसरी किसी मतलब के माशरे में जाएंगे, वहाँ कमाएंगे, हम टीचर बनेंगे, हम कुछ, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कहीं बिजनेस कर सकते हैं, इसके सिवा हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जो है यही है। तो आपने कहा हमें बहुत से मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है जब हम एक जगह से दूसरी जगह ये माइग्रेट कर रहे हैं। तो आपने आपको इस तरह कैसे बनाया कि आप इन चीज़ों से ओवरकम कर, चैलेंज को फेस करो। हाउ यू आर फेसिंग दीज चैलेंजेस? हम इस चैलेंज को ऐसे ही कि अपने आप करना पड़ता है। हाँ। जब अपने पास कुछ नहीं होता है, फिर हर एक चीज़ से लड़ना पड़ेगा। आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो आपको हर कहीं जगह भी दौड़ना पड़ेगा। और जब हमारे पास इसके सिवा है ही कुछ नहीं है। ये हमारे पास 10 मेरी हैं, 10 मेरे भाई की हैं, 10 मेरे वालिद साहब की हैं, हम 3 बंदे हैं इसमें। इसी तरह से हमें ये 10 को 5 बेचनी है, 5 को फिर से रखना है, फिर से ये मतलब कि करेंगे। मगर हमारे पास सब कुछ छोड़ के यही है और कुछ भी नहीं। हमारे खाने बदोश लोगों के पास इस माल के सिवा और कुछ भी नहीं है। खाना बदोश ज़िंदगी से जो इल्म है या स्किल्स है, क्या इसको कश्मीरी लोग या बाकी लोग अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं, ताना देते हैं? हमें हर कोई ताना देता है, कश्मीरी लोग नहीं है, कोई भी। देखो जैसे हमारे लोग भी कुछ पढ़े लिखे हैं, वो भी ताना देते हैं, कश्मीरी लोग भी देते हैं, गुज्जर पहाड़ी कोई भी हो इसमें ताना ही देते हैं। जैसे बोलेंगे ये क्या, ये पकान बकर वाले पाको कि नहीं, मैं आशी हमेशा फाकिमा सावलम फाकिमा काशरम फाकिमा, इसका ये है, हमें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। अच्छा, क्योंकि अगर कोई गाड़ी वाला जा रहा है, उसको 10 मिनट जाम लग जाएगा, वो भी बोलेगा कार साइड है, मुझे देर हो रही है, मुझे फलानी चीज़, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। ये हमारी मजबूरी है कि इसके सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब तो सब कुछ उस मेरा मालिक का हाथ में है, जैसे वो इंसान को रखे वैसा रहना पड़ता है। फिर भी सर एक बात तो है, गवर्नमेंट देखती है हजारों लोग हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ रस्तों में, जब उनको नजर आता है खान लोग तो एक रात में, रात भी चलता था और दिन भी चलता था, ऐसी जगह में नहीं बैठ सकता था, बैठने ही नहीं आता था उनको। या तो गवर्नमेंट सोचना है उनको जी, देखें हम इनका हालात कैसा है, प्रदेशन कैसा चल रहा है, जिंदगी कैसा गुजार है,